ओके गाइज, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एतिहाद की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है वो, साथ ही साथ अगर आप वो ऑनलाइन ले सकते हो या नहीं, क्योंकि अबू धाबी में जो आरटीपीसीआर टेस्ट आपको इनलाइन मिलेगा जब बैन अपलिफ्ट हो तब की बात है, वो देखेंगे। फिर एक जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट आया है रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे एक बहुत बड़ी अपडेट। पहले तो हम यही देख लेंगे कि जो एक बच्चा गया था इथोपिया के रास्ते से, सो उसका एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है। सो इफ़ यू मुझे एक फ्रेंड ने, हमारे कम्युनिटी मेंबर ने सेंड किया है कि भाई ये एक्सपीरियंस है, मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट पे डाली थी। सो वो पहले सुनेंगे हम। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर इनडायरेक्ट रूट के थ्रू कोई भी कंट्री के थ्रू जा रहा है और अगर आपके पहचान में कोई जा रहा है तो वंस दे रीच देयर, मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर या उनको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, ताकि मैं उनसे कम्युनिकेट करके आपके लिए कंटेंट ला सकूँ, एक क्वालिटी ला सकूँ, आपको पता चले कि भाई आपको जाना चाहिए या नहीं। जैसे आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चा इथोपिया के थ्रू जा रहा है। सो ऐसा आप हम सबको हेल्प होगी, आपकी एक हेल्प सबको हेल्प करेगी, सब बच्चों को जो हमारे वीडियोस देखते हैं उनको। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर कोई भी बच्चा इस रूट के थ्रू, मतलब इनडायरेक्ट रूट के थ्रू जा रहा है, देन प्लीज़ शेयर देयर नंबर विथ मी, या तो कोई इन्फो शेयर कर दीजिए ताकि मैं मेरी वीडियो पे शेयर कर सकूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो पहले आप वो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के आइए। ओके। My very honest advice to you guys would be do not plan on traveling right now. If you can wait, do wait. I took a flight from Doha to Addis Ababa yesterday, and trust me, it had like 95% Indians. The airport is not in the capacity to handle us. It took us like an hour and a half to clear the immigration. Ethiopia's immigration just takes about 30 seconds per person, and they took so long because the queues were so long they couldn't manage it. And post the immigration, the baggage claim, it was the worst experience in my life. I've taken so many flights, but this is like the world's worst experience that I've ever had. It took us like 2 hours to find the bags. The chains of the bags were open. The lock was broken. I don't know what they did with it. Uh, as of now, I don't know if something's missing or not. I was not, uh, you know, energetic enough to just go and check everything. But one honest thing from my side, if someone's not having COVID and if you travel in these conditions, the chances of contracting COVID are so high because in a very small area we had like so many, like about 300, 400 people standing together, and most of the people were having their masks down. It was very risky. So if you're planning Ethiopia, please take utmost precautions and be really careful about it. Also to mention, I'm not kind of scaring anyone. I had my experience. I mean, the reason I planned to travel was Rida because she told me that it's pretty amazing, it's pretty smooth. But what I realized was that when she was traveling, there were not many people who were aware about this route. But right now, you have travel agents, you have consultants bringing groups of 30, 35, 25 students. So even if three or four groups are traveling in your flight, you can expect about 120 of them, and then you'll have about 150 to 200 individual travelers, out of which like 90% would be students, remaining 5% would be PRs, and 5% would be spouse work permit people and open work permit people. So it's actually a mess right now looking at the COVID condition. So if you do not fear COVID, and you can take proper precautions without maintaining social distancing, you guys can definitely think for the route. But be very careful about social distancing over here. आपने उनकी पहले वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी। सो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई इथोपिया के थ्रू जाना, अगर आप सेफ़ है वैसे तो, लेकिन कोविड का जो 300 बच्चों को नज़दीक, फिर लाइन, फिर बैग्स, सो ये सब बातें आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। मुझे और कुछ कहना नहीं है, उन्होंने सब कुछ कह दिया। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए। ऐसा ही अगर आपके पास भी कोई इनडायरेक्ट रूट का एक्सपीरियंस हो तो मुझे शेयर कीजिए। अगर आपको फ़ेस टू फेस ना जूम कॉल करना हो, वरना तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी हो तो आप मुझे वो भेज सकते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प होगी। अगर आज आप ये वॉइस रिकॉर्डिंग्स देखिए तो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि बैग्स को हमको सेफ रखना है, बैग स्कूल गई थी उनकी। सो इफ़ देर इज़ समथिंग प्रीशियस थिंग्स इन योर बैग्स, देन दे कैन लॉस्ट इट कैन लॉस सॉरी। सो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। सो ये हेल्प होगी। सो और अगर हम अभी आते हैं एक एतिहाद की अपडेट के ऊपर, सो आप देख सकते हो अभी स्क्रीन में
तो पहले तो सिर्फ एमिरेट्स ने एक्सटेंड की थी, लेकिन मुझे पता ही था कि एतिहाद भी कर देगी। सो 14 जून तक ऑफिशियल उन्होंने भी कल स्टेटमेंट ला दिया है। फिर एक बच्चे ने उनसे पूछा था, हाई आई वांट टू फ्लाई फ्रॉम इंडिया टू टोरंटो वाया अबू धाबी ऑन 30 जून। ओके, तो सॉरी यार, ओके हाँ इधर है। विल देयर बी एनी RT-PCR फैसिलिटी अवेलेबल एट अबू धाबी एयरपोर्ट, इफ़ यस देन विद इन हाउ मच टाइम कैन आई गेट रिजल्ट। तो उसमें उनका रिप्लाई आया था, हाई तुषार, वंस द ट्रैवल बैन इज लिफ्टेड वी शैल परफॉर्म PCR टेस्ट एट अबू धाबी एयरपोर्ट इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स। पेमेंट फॉर द टेस्ट विल बी required during a check-in at India. You will still require a PCR test to depart India and must purchase an additional PCR test to be taken during transit in Abu Dhabi to be accepted from India. सो आपको पहले तो इधर से भी करवाना पड़ेगा और इधर ही आपको पे करना पड़ेगा उधर के टेस्ट का अमाउंट। सो जैसे आपको पता होगा, मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाली थी रिलेटेड टू पाकिस्तान टू अबू धाबी, उनका जो था सेम पैटर्न हमारा होगा। सो जैसे ही बैन अपलिफ्ट होता है तो इट्स अ सेफ प्लान कि आप इधर के थ्रू भी जा सकते हो। बाकी तो फिर इनडायरेक्ट फ्लाइट चालू, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो जाएगी। सो अभी हम आते हैं जस्टिन ट्रूडो के एक स्टेटमेंट पर जो कि वैक्सीनेशन से आया था कि द लेटेस्ट ऑन वैक्सीन, मोर देन हाफ ऑफ द कैनेडियंस हैव now received at least one dose of a COVID-19 vaccine, and with millions more doses coming into the country over the next weeks, that number will keep going up. So ये बहुत पॉजिटिव बात हमारे लिए है। जैसे आप सबको पता होगा कि बार बार ये लोग 75% वैक्सीनेशन पे बाहर रख रहे हैं कि इतना हो जाए तो यू दे कैन ईज द रेस्ट्रिक्शंस। सो कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे 21 जून तक। सो अभी आप एक ग्राफ देख सकते हो स्क्रीन पे, जिस पे कनाडा की वैक्सीनेशन की हम एटलीस्ट 1 डोज देखे तो वो थे 5 to 52.2%। सो बहुत मतलब बड़ी बात है यार। 52.2, अभी थोड़ा ही जाने का है हमें, 25% के अराउंड बचा है 22 के। सो हो जाएगा 21 जून तक, तो उससे ज़्यादा होगा मेरा तो ये अंदाज़ा है। फिर अभी हम आते हैं कोविड के केसेस के ऊपर। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कल इंडिया में आए थे 208,000 केसेस, तो बढ़ गए। कल उसके पहले आए थे 195,000, तो थोड़े बढ़ गए। फिर इंडिया कनाडा में भी कल बढ़ गए, अराउंड 4,000 के अराउंड आ गए, जो कल आए थे 2.3 के। सो उधर भी बढ़ गए। और अगर हम ऑन्टेरियो के स्पेसिफिक केसेस देखें तो उधर आए थे 1.4 के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं मैं इनडायरेक्ट रूट के बारे में मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको अवेयर करने की पूरी ट्राई करता हूँ। अवेयर मतलब आपके साथ इन्फो शेयर करने की, क्योंकि मैं इधर बैठ के ऑनलाइन देख के आपको कह तो सकता हूँ कि भाई इथोपिया के थ्रू चले जाए, इसके थ्रू चले जाए, उसके थ्रू चले जाए, लेकिन अगर उधर जाके कुछ हुआ तो सो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी इनडायरेक्ट रूट ऑन माई चैनल, और कि भाई आप इसके थ्रू जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग 30 के ग्रुप्स भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई फ़्लाइट बुक कर दो इस डेट की, हम जाने। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स ला रहे हैं स्कीम। मुझे भी बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स अप्रोच करते हैं दिन के दिन कि भाई हमको हमारे ये सेफ़ है, लेकिन आई डिडंट प्रमोट एनीथिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने आपका डिसीज़न है। सो इसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। मुझे प्लीज़ यार आई रिक्वेस्ट कि मुझे हेल्प कीजिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए जो भी बच्चा उधर जाता है उनका, ताकि आई कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस विथ यू। सो इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में। तब तक आप सभी लोग सेफ़ रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि 73% लोग अराउंड नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो कर दीजिए। एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट आ जाए। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग and I hope it helps. I'ma be the one they choose, though. You can be the one they lose, though. Way too busy and snooze, bro. I'ma be the one to rise up in it. Never gonna fall, I fight till I get it. Always stand tall, got pride, I'm grinning. I don't really think I'll ever find my limit. And I know that they all wanna hate me.